So hello everyone. The topic which we are going to discuss today is importance of public administration. So let's go in details. First of all, we have to understand that day by day the importance of public administration is growing because of various factors. And I have summarized the most important factors which are responsible for the emergence of the importance of public administration along with how the nature of the society, nature of the state has changed. In a globalized world where you need to interact with private sector, non-governmental organizations, and international diplomats, it has become very important, very much important that public administration is looked at a very different perspective. The first important factor which is responsible for the growth of public administration or the growing importance of public administration is emergence of welfare and democratic state. Now everybody will think that okay, we are a welfare state, we are a democratic state. Why suddenly public administration has become more important? It was not like that. For example, in India, it was under the British rule. So under the British rule, if you see the major function of the government, that is the British government in India, was to maintain law and order and to collect revenue. That was the two main functions which the British government was interested to do in India. And it was a sort of dictatorial regime where whatever the government had said, the government has unlimited powers with no restrictions. लेकिन आज़ादी के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया, फंडामेंटल राइट्स दिए, लॉज पास किए गए, ड्यू टू विच द powers of the government were regulated. We became a democratic state where people were able to choose their own representatives. British government के समय पे एंड में आफ्टर द 1930s आफ्टर 1920s आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इलेक्शन स्टार्ट हुए थे एंड पीपल स्टार्टेड वोटिंग एंड वी वर एबल टू इलेक्ट आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स. बट उसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सारे ब्यूरोक्रेट्स वही चूज करते थे एंड देयर वाज नो वेलफेयर, देयर वाज नो फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. उनका पूरा फोकस वाज टू लूट इंडिया, दैट्स इट. They wanted raw material so that their industries can be fed up with that and accordingly they can sell the finished products all over the world, including Indian markets. जिससे हमें काफी नुकसान हुआ. But आजादी के बाद from a police state we became a democratic state. A police state is where जहाँ पे सिर्फ जैसे मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का उनका मेन फोकस होता है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक स्टेट में मेन फोकस होता है लोगों का वेलफेयर. Maintaining peace is one aspect, but along with that, the vulnerable sections of the society needs to be looked after. So the state started making policies for generating employment, for eradicating poverty, for providing medicines, for providing basic essential amenities like electricity, water supply, transportation, communication, education, health, hospitals, etc. So it was obvious that the importance, the implementation agency, the executive branch of the government, that is public administration, became very, very important as we, after independence, as we became more and more developed. So let's discuss in detail. Emergence of welfare and democratic state has led to an increase in the activities of public administration compared to that of the laissez-faire state. So laissez-faire state is a state which has its independent way of performing its functions. It did not care what the people want, and people were treated like subjects and not like citizens. There is a difference between a subject and a citizen. When I say citizen, the citizen has certain rights which he can demand against the state, but a subject does not have any kind of rights. So obvious है कि welfare state में, democratic state में, it was a responsible and accountable government. जहाँ पे उनको लोगों का वेलफेयर करना इनका ज्यादा मेन फोकस था. The state has to now serve all sections of people in the society. This amounts to enhanced responsibilities of public administration. So responsibilities had increased. For example, previously when British government was ruling, and if there was failure of crops, agricultural losses were there, there was drought or there is famine, so there is no rainfall, there is a failure of monsoon. They did not care about it. The British government wanted its revenue. They didn't care about the conditions, the socio-economic conditions of the peasants, of the farmers, of the handicraftsmen, of the artisans, of the industrialists. They did not care about that. They just wanted money. उनको उनके taxes चाहिए थे. So they didn't care. But अभी अगर आप देखेंगे Indian government की बात सोचेंगे तो whenever there is such kind of a situation where the farmers are facing losses, the loans are waived off, subsidies are given. Government is providing different provisions under which they can have crop insurance, they can have सीड इंश्योरेंस. तो ये किए जा रहा है ताकि
उनको अगर फेलियर होता है क्रॉप का ड्यू टू सम काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी, तो दे आर बैक्ड अप and their loans are waived off. Okay, ताकि because otherwise we see that so many farmers are committing suicide specifically in the Vidarbha area of Maharashtra. तो ये ना हो, तो गवर्नमेंट जब पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है तो वो वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, और सारे सेक्शंस, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं या जो मिडिल क्लास है जिनके लिए फैसिलिटीज अवेल करना बहुत आसान है, बट स्पेसिफिकली दोज पीपल हु आर पुअर पीपल, गरीब लोगों को फैसिलिटेट करना, ये ज्यादा फोकस होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। POBAD is also to regulate and control private economic enterprises to meet the objectives of the state. तो प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी रेगुलेट करता है। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट गिवन अ फ्री हैंड कि जो चाहे आप वो कर सकते हैं। प्राइवेट enterprises are also having certain corporate social responsibility. They are also responsible for the welfare of the community. They are also responsible for the development of the infrastructure. जितना सरकार रिस्पॉन्सिबल है उतना ही प्राइवेट सेक्टर को अभी अभी हम रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगे हैं, जब से प्राइवेट सेक्टर हैज बिकम दैट मच स्ट्रांग। जब से प्राइवेट सेक्टर की मजबूत बना है, तब से अगर आप देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उनके ऊपर की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई। जैसे when I was discussing the differences and similarities between public and private administration, तो मैंने आपको यही कहा कि दोनों के बीच में का डिस्टिंक्शन कम होते जा रहा है। There is no watertight compartmentalization between the two, but yes, private enterprises also have to meet certain objectives of the state. For example, providing basic amenities such as अभी जैसे प्राइवेटाइज करते हैं तो मेट्रो रेल आ रही है, मोनोरेल, दिल्ली में मेट्रो है, मुंबई में मोनोरेल है, पुणे में मेट्रो आ रही है, सो मेनी, कोलकाता में लोकल ट्रेन्स, व्हाट नॉट। सो ऑल दिस प्राइवेट एंटरप्राइजेस जहां जहां पे है, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अंबानीज हैं, तो दे आर हैविंग, लाइक फॉर एग्जांपल दे प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन को फंड करते हैं, बट जो ऑर्फन्स हैं उनके भविष्य के लिए फंडिंग करते हैं। अगर कोई ओल्ड एज लोग हैं तो उनको मदद करते हैं, उनको लोगों को, अगर अडल्ट्स हैं तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो कुछ कर पाए। तो ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, वी हैव टू क्रिएट लिविंग कंडीशंस व्हिच आर बेसिकली रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, आप सिर्फ गवर्नमेंट को हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते। Okay, so private sector is also held responsible in certain aspects where specifically the government has told them to do something. उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद भी अगर आप देखेंगे तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ होते जा रहा है। तो अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल काफी चेंज हो गया है। Public administration also have to see labor rights, they also have to see women rights, women empowerment, they also have to see juvenile justice, crime rate बढ़ रहा है। There are situations, positive negative industrial revolution का दोनों impact हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ है। तो जितना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको बढ़ाना है और नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना है, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस होता है। So industrial revolution gave rise to socio-economic problems, making the government to assume new roles and responsibilities such as protection and promotion of the rights of workers in industrial establishments, etc. तो अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है। आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सेटअप में, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो whether it is with respect to any software companies, अगर आप देखो तो आज के डेट में लेबर राइट्स आराम से वॉलेट किए जा रहे हैं। कि आपको कहा जाता है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और अगर आप किसी कहीं पे जॉब पे ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के समय बताया जाता है कि भाई हाँ, आपकी 25,000 सैलरी है और आपको 8 घंटे की ड्यूटी है। लेकिन जैसे आप जॉब ज्वाइन करते हैं, जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको रियलाइजेशन होता है कि 8 घंटे नहीं, हम 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं, कभी कभी 16 घंटा काम कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रैवलिंग का टाइम भी फोकस नहीं करते कि भाई ट्रैवलिंग में हमारा 1-2 घंटा जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लेबर राइट्स को लेके भी काफी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया, जिन्होंने कन्वेंशंस पास किए विद रिस्पेक्ट टू लेबर राइट्स, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी फॉलो करता है। वी आर ऑल्सो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से वन एंड ओनली डिमांड इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाते समय उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है,
उनको इनपुट कम रखना है, आउटपुट ज्यादा रहना है, बिकॉज उनका मेन ओरिएंटेशन प्रॉफिट होने के कारण कम लोगों में ज्यादा से ज्यादा काम करवा के लेना, कि जो 40 लोगों का काम है वो 20 लोगों में करवा लेते हैं, जो 8 घंटे की ड्यूटी में लोग 12-12, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो फैक्ट्री एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, जहाँ पे लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बट स्पेसिफिकली व्हेन यू सी अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे अबंडेंस ऑफ लेबर है एंड दैट आल्सो चीप लेबर इज अवेलेबल, तो कई बार देखा जाता है कि लेबर राइट्स आर नॉट टेकन दैट मच सीरियसली। बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अमेरिका देखें, यूके देखें, वहां पे अगर आपके ऑफिशियल टाइमिंग्स के बाद अगर आपको कांटेक्ट भी किया जाता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड लेबर कोर्ट, और वहां पे आप केस फाइल कर सकते हो कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरा ऑफिशियल टाइमिंग के बाद भी मुझे कांटेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा फर्क है। दिस इज द वेरी बिग डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन बिटवीन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और हमारे में यही बहुत बड़ा फर्क है, बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन इतनी है और एजुकेटेड स्किल्ड मैन पावर आर अनएम्प्लॉयड। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा, जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जरूर हुई है, बट एट द सेम टाइम लेबर राइट्स का वायलेशन भी बढ़ गया कहीं ना कहीं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू सी टू दैट कि ऐसा ना हो, एंड गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज कम अप एज अ मॉडल एम्प्लॉयर। मॉडल एम्प्लॉयर का मतलब कि भाई वो मैटरनिटी बेनिफिट देते हैं, वो प्रॉपरली आपको छुट्टियां देते हैं, जब गवर्नमेंट की छुट्टी है तो छुट्टी है। वैसे प्राइवेट सेक्टर का नहीं, कई बार सैटरडे संडे बोलते हैं छुट्टी, लेकिन सैटरडे संडे को भी लोग जाके कंपनी में काम कर रहे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बट देयर हैज टू बी वर्क लाइफ बैलेंस, और वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए लॉ जरूरी है, वरना एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी है स्टार्टेड, जहाँ पे आपको वेजेस तो मिल रहे हैं, सैलरी तो मिल रही है, लेकिन स्लेवरी की तरह हो रहा है, जहाँ पे कोई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो राइट्स ऑफ द वर्कर्स हैव टू बी रिस्पेक्टेड। नॉट ओनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो होता ही है, इसके लिए सब लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं या जेएमएफसी बनना चाहते हैं कि भाई एक बैलेंस लाइफस्टाइल जी सकते हैं। बट दैट डज नॉट गारंटी इन प्राइवेट। प्राइवेट में ऐसी कोई गारंटी होती नहीं। Public administration has to see to that all those laws which are protecting labor rights are protected, are enforced. Labor codes का भी बहुत important role होता है इसके अंदर, alright? उसके बाद consequently the state has enacted a number of industrial and labor laws, and it is imperative for PABAT to implement such laws in order to meet the requirement of labor welfare. कई बार अगर आप देखेंगे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये कंसेप्ट ही नहीं है। अगर आप कहीं भी, आपको कोई भी एम्प्लॉयर आपको मेल भेज देगा कि आपका यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर आप लॉकडाउन का ही इफेक्ट देख लें, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद कर दिया। बिजनेस तो छोड़ो, बिजनेस तो खुद का होता है, बट कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया। जो 15-15, 20-20 साल से जिन कंपनियों में वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी, लॉयल्टी, वो कहीं छोड़ के नहीं गए दूसरी कंपनी में। बोले हम आपको सैलरी पे नहीं कर सकते, या उनको कहा गया कि हम आपको आधी सैलरी देंगे, लेकिन बाहर खर्चे कहाँ कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सब्जियां महंगी होती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, उसका कौन ख्याल रखेगा? और उस हिसाब से जो सैलरी बढ़ रही है वो उस प्रोपोर्शन में सैलरी नहीं बढ़ रही। तो ये लेबर लॉज देखना बहुत जरूरी है, लेकिन कितना रेगुलेट करोगे? और कई बार लोग चुप बैठ जाते हैं, आधी सैलरी में भी बहुत लोगों ने काम किया कि जॉब तो है, एटलीस्ट समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और जिनका बिजनेस है उनका तो बात ही छोड़ दो, कई बिजनेस बंद भी पड़ गए। लेकिन दिस शोज दैट वही यूरोप में अगर आप किसी को जॉब से निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको कहा कि आधी सैलरी 1 साल की उनको देनी पड़ती है, ऐसे आप निकाल नहीं सकते उनको। उसके ऊपर से गवर्नमेंट भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, यूएस में मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की सर्टेन, जब तक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इज गिवन टू दैट पर्सन कि आपको जॉब ढूंढना है तब तक मिलेगा, अदरवाइज अगर आप नई जॉब ढूंढ पाए तो हम नहीं देंगे। तो दैट पर्सन इज अंडर प्रेशर कि जब तक पैसे मिल रहा है तो मैं फटाक से जॉब मुझे मिल जाएगा तो बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंडिया में लेबर लॉज आर समटाइम्स टेकन फॉर अ राइट, ज्यादा सीरियसली इंप्लीमेंट होते नहीं। उसके बाद जैसे हमने देखा, इमर्जेंस ऑफ वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलोंग विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर देखें तो ज्यादातर जो सोशल इविल्स बहुत बढ़ गए, क्राइम रेट बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। बिकॉज इंडिया का मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ हुई, जीडीपी भी में इंक्रीज हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इट्स अ जॉबलेस ग्रोथ। जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए क्योंकि हम ऑटोमेशन के पीछे पड़ गए। हमको मशीनरी चाहिए थी, कंप्यूटर चाहिए थे, रोबोटिक्स चाहिए थे, मशीन चाहिए थी। तो मशीन ला दोगे तो अगर आप देखोगे तो पुराने जमाने में मिल्स हुआ करते थे, टेक्सटाइल मिल्स, जहाँ पे लोग मिल्स में काम करते थे, मिल्स ही बंद पड़ गए। तो कितने सारे जो मिल वर्कर्स थे जो बेघर हो गए, जो
बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो ये क्राइम रेट बढ़ गया, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे तो हुए हैं, बट हम जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। बट इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, तो वो है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। आज अगर आप देखें तो अगर मैं लेटेस्ट कहूँ तो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी को बहुत लोगों को पता ही नहीं है क्या है बिटकॉइन टेक्नोलॉजी। उसमें बिटकॉइंस, उसके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नॉट बिटकॉइन टेक्नोलॉजी। लाइक बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो लोगों को ब्लॉकचेन भी नहीं पता, बिटकॉइन भी नहीं पता, बस इन्वेस्ट किए जा रहे हैं इडियट्स की तरह कि भाई वो है क्या। बोले जा रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट कीजिए उसमें। प्रियंका चोपड़ा भी बोल रही है वहां से। उसका पूरा इंटरव्यू यहाँ पे इंडिया में नहीं एयर हुआ, बट सोशल मीडिया की वजह से आ ही जाता है कि घर पे बैठे बैठे आप पैसे कमा रहे हो। कैसे? ये कोई नहीं पूछ रहा, कमा रहे हो, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अश्योरिटी, सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, सम काइंड ऑफ बैकअप कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा। लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने तो उसको एक तरीके से लेजिटिमेट मान लिया है, क्योंकि आप बिटकॉइन से जो भी पैसा कमाओगे, जो भी वर्चुअल करेंसी से जो भी पैसा कमाओगे प्रॉफिट में, उसमें 30% टैक्स है, which is quite high actually. 30% is like those people who are earning more than 20 lakhs, उनके लिए 30 lakhs या आई थिंक 20 या 30 lakhs के ऊपर जिनका एनुअल इनकम है, उनको 30% टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। अगर वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब काफी पैसे आपके पास। लोग शेयर्स में कतराते हैं इन्वेस्ट करने से, यहाँ पे तो बिटकॉइन में लोग कर रहे हैं। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने उसको लेजिटिमेट मान लिया। तो लेजिटिमेट है, लेकिन है क्या वो अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में पता होना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर कुछ इसके रिलेटेड क्राइम्स होते हैं तो जैसे एक मूवी आई थी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट मूवी, व्हिच वाज बेस्ड ऑन अरशद वारसी का मूवी था, रियल लाइफ स्टोरी थी, यूपी की मूवी थी। अरशद वारसी हीरो था, महिमा चौधरी हीरोइन थी। वो आईपीएस दिखाया है, जहाँ पे मोबाइल टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम इंडिया में आई थी। और ही इज अ पुलिस दिखाया है। और ये रैकेट चल गया। पहले कैसे लैंडलाइन टेक्नोलॉजी को आप ट्रैक कर सकते थे, रिकॉर्डिंग सुन सकते थे, लैंड जो अपना लैंडलाइन हुआ करता था। अभी तो लैंडलाइन गायब ही हो गया, अभी दिखते ही नहीं लैंडलाइन। ये मोबाइल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, ये मोबाइल कैसे, कौन किधर बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन किससे। और उनका रैकेट का जो क्राइम रेट बढ़ गया यूपी बिहार में। तो अरशद वारसी इज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी। सो दे आर कॉलिंग दिस टेक्नीशियंस हु आर टीचिंग देम थियरी कि ये टावर होता है, ये सिग्नल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा है। वो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि उनको लॉस पता है, बट उनको ये टेक्नोलॉजी थोड़ी ना पता, थोड़ी इंजीनियर्स है। तो फिर एक प्रोफेसर ऐसा लाया जाता है कि जो उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाता है कि कैसे होता है। एंड देन ही स्टार्टेड टू ट्रैक मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करो तो लोगों को ट्रेन तो करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि उसको टैकल भी कैसे किया। अभी आप देखिए क्राइम पेट्रोल, अगर आपने देखा होगा, सारे केसेस मेजरली मोबाइल के लोकेशन पे और मोबाइल के डेटा के ऊपर से क्रैक किए जा रहे हैं केसेस, की मोबाइल में आया, मोबाइल यहाँ पे था, मोबाइल वहां पे था। तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस आर गेटिंग सॉल्व बिकॉज ऑफ मोबाइल्स, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी भी पता चल गई। इंटरनेट भी जब नया आया तो लोग डर रहे थे कि क्या है। पहले इतने सारे वेबसाइट्स आए, लोग ऑर्डर करते थे ऑनलाइन, कमर्शियल जो ई कॉमर्स जो हम बोलते हैं, पैसा भर देते थे और आता था तो घास फूस कुछ पत्थर आ जाता था, मोबाइल गायब, कुछ है ही नहीं अंदर। अभी भी कभी कभी होता है, रेयर है लेकिन वो। लेकिन पहले लोग डरते थे। अभी तो आप मोबाइल, कपड़े, सब्जियां, फल, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो। सो दैट इज व्हाई, बिकॉज नाउ वी हैव मास्टर्ड द टेक्नोलॉजी। अभी हम पकड़ सकते हैं कि किसने ये फ्रॉड किया है, किसने ये साइबर क्राइम किया है, किसने मोबाइल का मिसयूज किया है। बिटकॉइंस का क्या? इसीलिए साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितना बढ़ेगा, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की बढ़ेगी। सीसीटीवी कैमरा सिर्फ पकड़ेगा आपने सिग्नल तोड़ा है, लेकिन मैसेज तो आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही भेजेगा, कोई कांस्टेबल ही भेजेगा कि ये गाड़ी नंबर, ये देखो फोटो, और आपको ये पैसा भरना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा खुद नहीं भेजने वाला है मैसेज आपको। वो आपको मोबाइल नंबर, कहाँ कौन सी गाड़ी है, किसके नाम के अंदर रजिस्टर्ड, उसके मोबाइल नंबर पे ये जाएगा। अब पुराने जो गाड़ियां हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनको मैसेज नहीं जाता है। So scientific and technological development has definitely added on the responsibilities to public administrators. They have brought about welcome additions like infrastructure, power है, transport, communication systems. अभी मोबाइल के वजह से, जैसे मैंने कहा कि हर टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल होती है, चाहे वो इंटरनेट हो जाए, मोबाइल्स हो जाए, बिटकॉइंस हो जाए, टेक्नोलॉजी इज न्यूट्रल। आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर सोशल मीडिया अगर आप देखें, अगर इंटरनेट का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करोगे तो बहुत फायदा है। लेकिन हम टाइम पास कर रहे हैं, वेस्टिंग टाइम।
वी आर अपलोडिंग थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली डजंट मैटर, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अनलेस वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ एंड इम्प्रेस समवन, दैट्स इट. बट अगर आप thinking commercially or thinking with respect to any kind of social impact, zero. Majority of the people don't know how to use social media. तो इस्तेमाल कैसे करना है इस टेक्नोलॉजी का, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है. The invention of telephone, telegraph, other mechanical devices such as typewriter, teleprinter, calculators, photocopying machines, computers, fax, electronic mail, that is email, they have revolutionized office administration, specifically e-governance. की वजह से काफी transparency और accountability public administration में बढ़ गई है. Now they are held accountable for whatever they are doing. All these have made possible big government and large scale administration. इसलिए अभी लोग गवर्नमेंट कोने कोने में पहुंच सकता है विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस. अगर कोई फार्मर है तो उसको पता नहीं कि कौन सा फर्टिलाइजर मुझे मेरे सॉइल में इस्तेमाल करना चाहिए, तो अभी आप एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आप सॉइल का, वो लोग आते हैं सैंपल लेने के लिए, सॉइल लैब्स होते हैं, सॉइल लैबोरेटरीज होते हैं टाउन लेवल्स पे, तो वो आते हैं उनके ऑफिशियल्स और वो आपके सॉइल का सैंपल लेके जाते हैं फार्मर का. उसके ऊपर टेस्टिंग करते बोलते हैं कि आपके सॉइल में पोटेशियम कम, नाइट्रोजन ज्यादा, यूरिया मत डालिए, क्योंकि यूरिया इज सच अ फर्टिलाइजर व्हिच हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड इट इज सब्सिडाइज्ड एंड इट इज वेरी चीप. तो कुछ भी डालना हो तो यूरिया डाल देते हैं सॉइल में. इसके वजह से लैंड पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल इनफर्टाइल होता जा रहा है. क्योंकि कैसे होता है कि हम जैसे हमारी बॉडी का बात कर लेते हैं, तो इफ वी कीप ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स खाते रहेंगे तो मसल नहीं टिकेगा. प्रोटीन भी खाना जरूरी है, अच्छे फैट्स खाने, सब कुछ न्यूट्रिशन बॉडी को पूरा मिलना चाहिए. तो वो नहीं मिलेगा तो आगे जाके जैसे उम्र 30-35 के ऊपर जाएगी तो फिर धीरे धीरे आप छूट जाओगे, मसल पेन करने लगेंगे, रिस्क प्रॉब्लम्स, डायबिटीज. ये वैसे ही सॉइल का है. अगर सॉइल में पोटेशियम कम है तो आप यूरिया क्यों डाल रहे हो? उसमें तो नाइट्रोजन है, अमोनिया है उसमें. तो वो उनको एक एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन पे रिपोर्ट भेज देंगे. यू डोंट नीड टू गो टू द टाउन. आपको वहां पे नहीं तो 4 बार फोन करेगा, भाई जा रहा, हम ही लेके जा रहे हैं, हम ही 4 हो गया क्या, रिपोर्ट हो गया. जब रिपोर्ट हो जाएगा तो आपके इस पे मैसेज आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा कि हो गया है और हमने भेज दिया, तो पीडीएफ आ जाएगी आपकी. तो हाँ, ये वाला तो बताएंगे कौन से फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से शॉप में आपको सस्ते में मिलेंगे आपके एरिया में. तो फार्मर को बैठे बैठे मोबाइल पे इंफॉर्मेशन मिल रही है. अभी जैसे अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक्स हर गांव में अपनी ब्रांच नहीं ओपन कर सकते, तो अभी आप जीपे कर लो. अकाउंट भले ही आपका सिटी में हो, लेकिन आप घर पे बैठे बैठे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो ना. यू कैन यूज जीपे, यू कैन यूज पेटीएम, यू कैन यूज इंटरनेट बैंकिंग, यू कैन यूज मोबाइल बैंकिंग. मोबाइल के अंदर भी उनके एप्लीकेशंस होते हैं, एसबीआई का एप्लीकेशन, योनो एसबीआई करके. वो चलता कैसे आई डोंट नो, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज नॉट दैट ग्रेट. तो वो इंप्रूव करेंगे बिकॉज दिस इज अ बिगिनिंग. हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बैंक का ब्रांच होने की जरूरत नहीं. तो ये दिस हैज रियली हेल्प्ड, बट एट द सेम टाइम रिस्पांसिबिलिटीज भी बढ़ गई है क्योंकि साइबर क्राइम भी बढ़ा है. लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 20% साइबर क्राइम्स बढ़ गए और 200 टाइम्स ज्यादा अटेम्प्ट किए गए. कि कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे आपके पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं, आपका पैसा निकलने वाला अकाउंट में से, आप लॉस हो जाएगा, आपका ओटीपी शेयर कर दीजिए, मैं ट्रांजैक्शन करवा दूंगा. एंड ओल्ड एज पीपल और यंग किड्स हु डोंट अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस काइंड ऑफ क्राइम, दे फेल प्रे टू इट. Okay, so all these have made possible for the public administrators to reach each and every individual, obviously. But अभी भी अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट पेनिट्रेशन उतनी है नहीं, सभी के पास मोबाइल नहीं है. अभी भी इतने लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, बट वो लोग हमें दिखते नहीं है. We don't see those people. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उन लोगों को तरफ देखना. इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. कभी नहीं देखेगा, उनको कोई लेना देना नहीं है. Besides changing the ethos and character of public administration, the revolution in information and communication technologies have contributed to improve delivery of services to people. तो मैंने कहा डिलीवरी मतलब आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप के, आपके कंप्यूटर पे मेल आ जाएगा. अभी जैसे मेरा एग्जांपल दूं तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे करना होता तो मुझे जीपे पे, क्योंकि मैंने कनेक्ट कर रखा है या मेरे ईमेल आईडी मैंने दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है, तो मुझे मैसेज आ जाता है, मेल आता है, जीपे पे रिमाइंडर आता है कि ये बिल भरना है, ये बिल भरना है. 2-3 रिमाइंडर आते हैं, भरने के बाद भी रिमाइंडर आते हैं कि ये बिल भरना है. तो मुझे अलर्ट हो जाता हूँ मैं कि हाँ, आई हैव टू पे द बिल फॉर माय दिस, यू नो. तो मैं घर पे बैठे बैठे, तो पहले मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में जाना पड़ता था, ये बड़ी लाइन हुआ करती थी क्योंकि सभी के साथ में बिल आते थे.
तो आई टू सी की वर्किंग डे पे जाए, कॉलेज में एक आध दो सेशन एब्सेंट, कॉलेज के लेक्चर छोड़, तो मैं जाके खड़ा हो जाता था। उसमें भी फिर वो कैश पे करनी पड़ती थी, जीपे कुछ नहीं था, कार्ड नहीं था मेरे पास, कैश में छुट्टे का प्रॉब्लम, यू हैव टू गो विथ चेंज। बहुत इट वाज वेरी इनकन्वीनियंट एक्चुअली। अभी लगता है, अब तब मैनेज हो जाता था क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं था। अभी है तो अभी जीपे कर दो, यूपीआई पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मैं इंटरनेट बैंकिंग से पे कर देता हूँ एंड आई गेट द रिसिप्ट ऑल्सो। ईमेल पे रिसिप्ट आ जाती है, मोबाइल पे मैसेज आ जाता है और मुझे जीपे पे भी नोटिफिकेशन आ जाती है डन। तो मेरे पास प्रूफ है कि आई हैव गॉट द रिसिप्ट। ओल्ड जो पुराने जमाने के लोग हैं वो अभी भी वो चाहते हैं हार्ड कॉपी चाहिए। हाँ बाबा लेके आता हूँ, वही जो रिसिप्ट निकलती है उसका प्रिंट आउट, ये रहा इस महीने का, ताकि वो मेंटली उनको वही चाहिए। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग, हमने 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट कर दी। वी हैव अडॉप्टेड दिस मॉडल फ्रॉम सोवियत यूनियन, तब सोवियत यूनियन था, अभी रशिया हो गया। तो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की कंसेप्ट बेसिकली हमने रशिया या सोवियत यूनियन से कॉपी की। कॉपी इन द सेंस वी इंस्पायर्ड, वैसे का वैसा कॉपी नहीं किया, बट 5-5 साल का जो गैप होता है वैसे किया। फिर हम एनुअल बजट्स करते हैं, एनुअली हम इकोनॉमिक सर्वे एस्टैब्लिश करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ब्रिटिश के जमाने में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ब्रिटिश का सिर्फ 2 ही काम था, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब मारो। जब सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, सेडिशन डालो अंदर, जेल में डालो। मतलब महात्मा गांधी से लेके बाल गंगाधर तिलक तक सबको जेल में डाला इन लोगों ने। तो ये कुछ प्लानिंग नहीं थी। और दूसरा मेन काम था इनका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, पैसा कलेक्ट करो, पैसा पैसा पैसा, एक्सप्लॉयटेशन, दैट्स इट। बट ये प्लानिंग करना, बजटिंग करना, ये कुछ करते नहीं थे। दे वर नॉट आंसरेबल आल्सो। So centralized economic planning has been pursued in many developing countries as a method for socio-economic development. पहले जब चालू की ना, हमारे पास प्लानिंग कमीशन था। It was constituted in 1950, which was headed by the Prime Minister. ये एक सेंट्रलाइज बॉडी थी क्योंकि स्टेट एस्टेब्लिश ही नहीं हुई थी। स्टेट 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास, फैजल अली कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उसके बेसिस पे स्टेट्स बने। गोवा ही कुछ 1970 में ज्वाइन हुआ, बहुत बाद में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत काफी 1970s में ज्वाइन हुए, बहुत सारे यूटीज थे जब बाद में स्टेट बन गए। तो स्टेट का कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं, पता ही नहीं था कि कैसे करते हैं, कैसे गवर्नमेंट चलाते हैं। तो इट हैड टू बी सेंट्रलाइज्ड। लेकिन अभी नीति आयोग है जहाँ पे स्टेट्स का भी, अभी हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं अभी in the 21st century, because now state have become empowered। मतलब कभी कभी तो भिड़ जाते हैं भाई, ममता बनर्जी भिड़ जाती है, अपनी ठाकरे साहब भिड़ जाते हैं, या तमिलनाडु के लोग भिड़ जाते हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 पिछले साल जो की गई कि अभी वो चेंज करने वाले कि बच्चे जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ जापानीज, जर्मन, इंग्लिश, जो आपको लैंग्वेज सीखनी है आप सीख सकते हैं। तो तमिलनाडु ने बोला हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सी पॉलिसी इज अ डायरेक्टिव, फॉलो करना नहीं करना आपकी इच्छा, क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, इट इज नॉट अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट। तो ये पता नहीं होता है बच्चों को, हमें ऐसे कैसे बोल दिया। मीडिया वालों को भी नहीं पता होता। जो लॉ का इंडिविजुअल है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन पता है, जिसको आईपीसी पता है, लॉज पता है, वो बोल सकते हैं कि कोई, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कुछ बोलोगे तो स्टेट इमरजेंसी लागू कर देंगे, सेक्शन 356। यू कांट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्यों बोल पा रहा है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वो सही बोल रहे हैं। ये कोई नहीं बताएगा, ये हम लोग बताएंगे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमने स्टार्ट की, सेंट्रलाइज था स्पेसिफिकली इंडिया में। It requires a large number of experts, elaborate administrative machinery for plan formulation, implementation, monitoring, evaluation. तो ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि ये सब अभी एडमिनिस्ट्रेटर्स ही करते हैं। So according to Gerald Caden, PubAd has assumed the following crucial roles. तो कौन से उनके रोल क्रूशियल हैं? तो मैंने एक समराइज करके एक पॉइंट वाइज मैंने इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट नोट आती है तो इतना बड़ा आंसर तो लिखना नहीं है, अगर बड़ा 10 मार्कर आया तो इतना लिखना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट नोट आती है तो ये शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटी, मतलब हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको प्रिजर्व करना। देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, कभी कभी सरकारें गिर जाएंगी। अगर आपको याद होगा 1967, 68, 69 जनता गवर्नमेंट गिर गई 3 सालों में। इंदिरा गांधी जेल में थी, वो बाहर आ गई, सरकार गिरा दी, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अगेन। तो ऐसी सरकारें गिरी, हम पार्लियामेंट गिर सकती हैं। तो सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ब्यूरोक्रेट्स कहीं नहीं जाएंगे। उनकी सर्विस 60 इयर्स तक होती है, तो दे हैव टू बी देयर। उनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है कि जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो यही लोग संभालेंगे देश को। एंड आपको पता नहीं होगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ
recommendation by various freedom fighters and people who are in the legislature to abolish bureaucracy. IAS IPS सारी सिस्टम जो थी सबको abolish कर दो. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि ब्यूरोक्रेसी इज द आयरन फ्रेम ऑफ दिस कंट्री. जो फ्रेम है ना लोखंड की, वो ब्यूरोक्रेसी है. उसके अंदर जो अभी जैसे बिल्डिंग का एक आयरन फ्रेम होता है जिसके अंदर आप दीवारें बनाते हो, तो ये दीवारें पॉलिटिक्स है. आप तोड़फोड़ करके उसको चेंज कर सकते हो स्ट्रक्चर, लेकिन जो फ्रेम है वो नहीं चेंज कर सकते. तो उनके वजह से ये प्रिजर्व रहा ब्यूरोक्रेसी. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना में. अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पांसिबिलिटी किसका होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आईएएस होता है कि आईपीएस होता है? आईएएस. गुड. सो आईएएस ऑफिसर इसलिए वो सबसे पावरफुल होता है. तो आईएएस ऑफिसर इज द वन हु हैज द ultimate responsibility to maintain law and order. So even the IPS is answerable. लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि IPS is under IAS, but in certain situations district magistrate has powers under CIPS to maintain law and order. कि अगर there is a problem with peace maintain करने के लिए जैसे section 144 ये IAS ऑफिसर ही पास करता है. ठीक है. उसके बाद institutionalization of socio-economic changes. जो भी चेंजेस करने हैं आपको उसको परमानेंट करना बोलते हैं. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब परमानेंट करना. स्कूल एस्टैब्लिश करना, हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करना, टाउन एरियाज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को वो चल रहे कि नहीं वो देखना. बिकॉज़ व्हाट आई नोटिस व्हेन आई हैव वेंट टू रूरल एरियाज, वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स नहीं है. तो दिखने के लिए दिखते हैं. और जब कोई सर्वे करने कोई आता है, उनको पता चलता है कि हाँ भाई कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे आने वाले हैं, सर्वे करने वाले हैं, वो देखने वाले कि कैसे काम करते, तो सडनली सब आ जाते हैं. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, आपने न्यूज पढ़ी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिड यू सी मुन्ना भाई, एक फेक हॉस्पिटल था जिसमें मतलब कॉलेज था जिसमें एक फेक हॉस्पिटल की उन्होंने फेक पेशेंट्स कर दिए, खड़े कर दिए. जैसे मुन्ना भाई में आपने देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस. तो बोलते आपने मुन्ना भाई से इंस्पायर हुए को आपने ऐसा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया. मैं बोलूंगा नहीं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने भी यही किया, नाम नहीं ले सकता. तो उन्होंने भी यही किया कि उनको ये चाहिए था, एक्रीडेशन चाहिए था कि हाँ ये हॉस्पिटल है, ये कॉलेज है, यहाँ पे आप एमबीबीएस की डिग्री चला सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, उनके दूसरे जो ब्रांचेस थे, इंजीनियरिंग ब्रांच है, लॉ ब्रांच है, मैनेजमेंट, उनके वहां के लोगों को सफेद कोट पहना दिया. मैं लैब असिस्टेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट हूँ, ऐसे करके उन्होंने हॉस्पिटल दिखाया. वेरी बिग एंड रेनाउंड इंस्टीट्यूशन. सबको पता था, सब एक्रीडेशन मिल गया, एक्रीडेशन मिल गया. सो ये ऐसी चेंज नहीं होनी चाहिए. इट हैज टू बी ऑथेंटिकेट चेंजेस ना. तो क्या करने के लिए अभी कितने बारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, लेकिन टीचर नहीं है, स्कूल होते नहीं है. मतलब जितना मुझे पता है कि जो रीजनेबली चलते हैं वहां पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपका जॉब टाइमिंग 9 to 3 है. सपोज डॉक्टर को सुबह 9 बजे आना चाहिए, डॉक्टर 12 बजे आ रहा है, 1 बजे लंच ब्रेक हो रहा है, 3 बजे घर जा रहा है, और कंपाउंडर मेडिसिन दे रहे हैं. कंपाउंडर या जो लोअर ऑफिशियल्स है वो लोग मेडिसिन, अरे भाई लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट हो सकता है ना. कंपाउंडर के पास थोड़ी ना वो नॉलेज है, डॉक्टर के पास भी उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए वहां पे ये भी प्रॉब्लम. क्वालिटी मैटर्स. उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज, जो भी बड़ी बड़ी आप देखें, जैसे अभी बिटकॉइंस को मैनेज करना पड़ेगा, इंटरनेट, ई कॉमर्स, सरोगेसी, या तुम्हारे उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, कि भाई अंदर कुछ रैकेट तो नहीं चल रहा है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब मैनेज. लार्ज स्केल कमर्शियल सर्विसेज को तो देख आंख रखनी पड़ती है, नजर रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कई बार ब्लैक मनी, डर्टी मनी जनरेट होता है, उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है. इंश्योरिंग ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, ये तो मैंने पहले भी बताया. प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, गरीब लोग हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हमारे पास रिजर्वेशन पॉलिसी है, लेकिन जिनको जरूरत है उनको पता ही नहीं, और जिनको जरूरत नहीं है उसका मिसयूज कर. ठीक है. और नॉट एवरी पॉलिसी इज परफेक्ट, नॉट एवरी कंट्री इज परफेक्ट, उसे परफेक्ट करना हमारा काम है. रंग दे बसंती. फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जी हाँ, लोगों में
ओपिनियन जनरेशन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो लोग कब ओपिनियन जनरेट करते हैं? जब उनको आप इंफॉर्मेशन दोगे। कई सालों तक हमारे गवर्नमेंट में सीक्रेटली काम करने की आदत थी, सीक्रेसी मेंटेन करने की आज भी आदत है। तो जब तक आप लोगों को इसलिए आईटी एक्ट पास किया गया कि लोगों को जब आप इंफॉर्मेशन दोगे देन ओनली पीपल विल बी हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ ओपिनियन। अब जैसे इलेक्शंस के एग्जांपल देता हूं, पहले इलेक्शंस में ये रूल नहीं था कि यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन, कोई क्रिमिनल केस नहीं है आपके ऊपर, आपका प्रॉपर्टी कितना है, अभी डिस्क्लोज करना पड़ता है ताकि लोग जब वोटिंग करने जाए तो पहले ही वो वेबसाइट या जो भी उनका नोटिस बोर्ड होगा जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, लैंग्वेज क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा अलॉन्ग विद एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, किसके आगे क्या काम किया, क्या अच्छे काम नहीं किए, क्या किया, कुछ केस है क्या, क्रिमिनल केस पेंडिंग है क्या, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब पता चल जाएगा। सो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले पाओगे, आपका एक ओपिनियन जनरेट होगा। आजकल क्या हो रहा है, यू आर नॉट गिवन अ चांस टू क्रिएट एन ओपिनियन, आपको ओपिनियन हैंड ओवर किया जा रहा है, ये लो ओपिनियन, ये ओपिनियन होना चाहिए, अगर आपका ये ओपिनियन नहीं है तो आप देशद्रोही, यही सही है। ये बोलने वाले हम है कौन? ठीक है, ये मेरे हिसाब से सही है, आपको कोई अलग ओपिनियन हो सकता है, यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, डजंट मीन दैट कि आपका ओपिनियन गलत है, मेरा भी ओपिनियन गलत नहीं, बट आपका देखने का नजरिया अलग है। मैं देखता हूँ मुझे 6 दिख रहा है, आप देख रहे हो आपको 9 दिख रहा है, बट है तो एक ही चीज, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So that is the reason why importance of public administration has grown, specifically because of scientific and technological innovations, economic planning, industrial revolution, and emergence of welfare and democratic state. Okay, so that was about importance of public administration.